میرے عزیز بہن بھائیوں، میرے ہم وطنوں، بس میں آپ کو میرا سلام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک تسلسل کے ساتھ مختلف جعلی علماء، مختلف جعلی نبی، مختلف جعلی رسول، مختلف جعلی ولی، مختلف جعلی اور بدعتی کلیسیاؤں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام ایک خاص پروگرام تھوڑا سا اس لیے ہے کہ ہم ایک آپ کو ایسے کردار سے ملانا چاہتے ہیں کہ جس نے 19ویں صدی میں ایک خاص دعویٰ کر دیا ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے کہ میں مسیح الموعود ہوں، میں ہی حضرت محمد عربی ہوں، اور خاص طور پر اپنی بہت ساری باتیں اس نے اپنے بارے میں بہت سارے آدمی، ان کا نام تھا جناب مرزا قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی۔ 1839 یا 1840 حتمی سن ان کا دستیاب نہیں ہے، سکھوں کے آخری دور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام غلام مرتضیٰ ولد عطا محمد ولد گل محمد تھا۔ مرزا صاحب کے اپنے خیال کے مطابق وہ قوم مغل برلاس سے تھے، لیکن بعد میں اس کے خود ہی تردید کر دی کہ ان کا خاندان خاص فارسی خاندان ہے۔ اس کے بارے میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ حتمی آپ کو مل جائیں حوالہ جات، تو ہم اس کے لیے بھی بالکل تیار ہیں۔ ہمارے پاس سارے جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں ان کی مکمل تفصیلات ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں۔ حضور جو تھے مرزا قادیانی، وہ دعویٰ بھی نبوت کا کرتے تھے اور شراب کا شوق بھی فرما لیا کرتے تھے۔ حکیم محمد حسین کے نام خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وقت میاں یار محمد بھیجا جاتا ہے، آپ اشیاء خوردنی خود خریدیں اور ایک بوتل ٹانک وائن کی پلومر کی دکان سے خریدیں، مگر ٹانک وائن چاہیے اس کا لحاظ رہے۔ یہ یاد رکھیے، ٹانک وائن چاہیے اس کا لحاظ رہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ جو تھا شراب کا حکم صادر فرمایا جناب حکیم محمد حسین صاحب کو۔ حکیم محمد حسین قریشی جو خود بھی مرزا پر ایمان و عقیدہ کے سبب قادیانی ہی تھے، ان کے ٹانک وائن کو مطلب تشریح یہ فرماتے ہیں، ٹانک وائن ایک قسم کی طاقتور اور نشہ دینے والی شراب ہے جو ولایت سے سربند بوتلوں میں آتی ہے۔ اس کی قیمت 8 روپے ہے۔ اس وقت 8 روپے بہت بڑی قیمت ہوا کرتی تھی۔ اور دیکھیں کہ یہ شوق تو خیر اپنی جگہ پر، لیکن آپ نے اپنی شخصیت کو نہ دیتے وقت پتہ نہیں کیا آپ کے دماغ میں خناق سمایا، دعویٰ مسیحیت بھی کر دیا، مسیح ہونے کا دعویٰ بھی، اور وجود محمد بھی کر دیا۔ ہم آپ کو ایک ان کا حوالہ کوٹ کرتے ہیں۔ یہ پس جبکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک حضرت مسیح موعود کا وجود خاص آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود ہے، یعنی خدا کے دفتر میں مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں کوئی دوئی یا مغایرت نہیں رکھتے، بلکہ ایک ہی شان، ایک ہی مرتبہ اور ایک ہی منصب اور ایک ہی نام رکھتے ہیں۔ اخبار الفضل قادیان جلد نمبر 3 صفحہ 37 مورخہ 16 ستمبر 1915۔ یہ یاد رکھیے گا۔ ہم اس کے بعد میں آپ کو حوالہ جات وغیرہ نہیں دوں گا۔ آپ مزید ان کے بارے میں معلومات ہم سے حاصل کرنا چاہیں تو ہم نیچے دیے گئے لنک پر ہم سے رابطہ قائم کیجیے، ہم آپ تک پہنچیں گے۔ اور اس کا یہ نہیں کہ صرف حضرت محمد اپنے آپ کو ثابت کیا، مسیح موعود بھی ثابت کیا۔ اور ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مریم ہوں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسیح ہوں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مریم ہوں اور میں حاملہ ہوں اور میرے پیٹ میں مسیح موعود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریم کی شان اور مسیح موعود کی شان دونوں ہی مجھ میں ورد کر رہی، اور میں مسیح موعود بطور مسیح موعود پیدا ہوا۔ خدا جانے کس قسم کے وہ کرتے۔ ایک بار تو حضرت علی پر بھی فضیلت کا دعویٰ کیا۔ اس کے سارے حوالہ جات ہمارے پاس موجود ہیں۔ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو، ایک زندہ علی تم میں ہے، اس کو تم چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔ یہ سارے حوالہ جات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور دوسرے مذاہب پر یقین اور پیغام سلامتی کا ذرا دیکھیے گا کہ وہ جو الہامی مذہب ہیں ان کی حقیقت یا ان کا بیان تو اپنی جگہ پر، لیکن انہوں نے ہر ایک نبی پر
हर एक नबी से मुराद के जिनको हम नबी मानते नहीं हैं उन पर भी सलाम और दुरूद भेजा। देखिए, खुदा के रास्तबाज नबी रामचंद्र पर सलामती, खुदा के रास्तबाज नबी कृष्ण पर सलामती, खुदा के रास्तबाज नबी बुद्ध पर सलामती, खुदा के रास्तबाज नबी जरतश पर सलामती, खुदा के रास्तबाज नबी कन्फ्यूशियस पर सलामती। याद रखा जाए कि कन्फ्यूशियस चाइना से था और वो कोई नबी नहीं था, वो कोई नबी था ही नहीं, वो एक हकीम था। हिकमत और दानश्वर के हवाले से कन्फ्यूशियस के जो अकवाल हैं वो जो चाइना में बहुत सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद खुदा के रास्तबाज नबी इब्राहिम पर सलामती, खुदा के रास्तबाज नबी मूसा पर सलामती, खुदा के रास्तबाज नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती, खुदा के रास्तबाज नबी अहमद यानी मिर्जा कादियानी पर सलामती हो, खुदा के रास्तबाज बंदा बाबा गुरु नानक पर सलामती हो। ये पैगाम सुलह लाहौर से छाया हुआ था, मोरखा 19 अप्रैल 1933। ये एक इनका एक और शौक भी था कि हर बात में ये नबूद कर देते। एक शख्स थे अब्दुल्ला आथम जिन्होंने मसीहत कबूल की, वो इस्लाम से मसीहत में आए थे, तो उनके बारे में उन्होंने इनके साथ एक खास मुनाजरा किया जिसमें मिर्जा साहब जो थे वो सख्त इनको अजीमत उठाना पड़ी अपने दावे नबूवत के तनाजुर में। तो इन्होंने उनको कह दिया कि अब्दुल्ला आथम इतने दिनों में मर जाएगा। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब्दुल्ला आथम कब मरता है, लेकिन अब्दुल्ला आथम जिंदा रहे और जब उनका वक्त दिया हुआ वक्त 40 दिन का पूरा हो गया तो अब्दुल्ला आथम को कांधों पर बिठाकर हार पहनाकर जुलूस निकाला गया, तो इनकी नबूवत वहीं दम तोड़ गई। लेकिन इसके बावजूद ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे और एक बार इन्होंने कोई खातून इनको पसंद आ गई, नाम था उनका मोहम्मदी बेगम वल्द, मोहम्मदी बेगम बिन्नत अहमद बेग को पसंद कर बैठे, पसंद आ गई। रिश्ता तलब करने पर अहमद बेग साहब ने इनके ढंग से क्लास ली, इनको उम्र का लिहाज दिलाया, ऊपर से ये कहा कि आप नबूवत कुछ और कर रहे हैं, दावा कुछ और कर रहे हैं, निकाह आप एक उस खातून का या उस लड़की का मांग रहे हैं जो आपसे आधी उम्र से भी कम है, तो आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन ये अपने दावे से बाज नहीं आए, बल्कि ये कहा, बल्कि पेशगोई कर दी कि एक वक्त आता है कि अजीब असर पड़ेगा और सबके सर नदामत से नीचे होंगे और तब तक जिंदा है, पर मेरे निकाह में वो औरत जरूर आएगी। उम्मीद कैसी कामिल है, खुदा की बातें टलती नहीं, होकर रहेंगी। हुआ क्या, मोहम्मदी बेगम का निकाह बिलाखिर मिर्जा सुल्तान अहमद बेग से हो गया। तो पेशगोई कर दी कि निकाह के वक्त से ठीक 2.5 साल के अंदर अंदर मिर्जा सुल्तान अहमद इंतकाल कर जाएंगे और मोहम्मदी बेगम उनके यानी मिर्जा कादियानी के निकाह में आ जाएंगी। ये मिर्जा साहब का ऐलान था, हमारे पास सारे हवाला जात मौजूद तारीखों के साथ। सब है कि मिर्जा की ख्वाहिश कभी पूरी ना हो सकी, ना तो मिर्जा सुल्तान वफात पा सके और ना मोहम्मदी बेगम इनके निकाह में आई। आखिरकार मिर्जा साहब को इंतकाल करना पड़ गया और इसी हैरत नाकाम को लिए 1908 में मिर्जा इस हाल और क्या में मुबतला होकर रिज़्क़े खाक हो गया। और इसके साथ साथ ये ज़ातुल अंबिया और मुकर्रबीन जो थे उन पर भी ये करते थे, मैं मिर्जा कादियानी फरिश्ता हूं, मैं मिकाइल फरिश्ता यानी खुदा की मानिद हूं। ये हवाला जब हमारे पास मौजूद है जनाब। मैं मिर्जा कादियानी हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक, हजरत यकूब, हजरत इस्माइल, हजरत मूसा, हजरत दाऊद और हजरत मोहम्मद हूं। सारी शख्सियात अपने अंदर इकट्ठी कर, सारे अंबिया अपनी जात में इकट्ठे कर लिए। और इसके बाद कहते हैं मैं मिर्जा कादियानी हजरत दाऊद, हजरत यूसुफ, हजरत सुलेमान, हजरत याह्या यानी हजरत याह्या भी जिन्होंने मसीह के बारे में आने की जो है वो पेशगोई की थी और कहा था कि मैं रास्ता सीधा करने के लिए आया हूं, ये भी खुद बने और मसीह मौत भी ये खुद थे। उसके बाद कहते हैं मैं नबी हूं, मैं कृष्ण गोपाल हूं, आर्यों का बादशाह हूं। ये हमारे पास मौजूद है सारे हवाला जात। और वो फिर कहते हैं तुम पर वो लोग दुरूद भेजेंगे मिर्जा कादियानी पर, तुम पर वो लोग दुरूद भेजेंगे जो जमात में मिसले अंबिया और बनी इसराइल पैदा होंगे। ओह, और इल्हाम देखें, खुदा अर्श पर तेरी तारीफ करता है, हम पुरुष तेरी तारीफ करते हैं और तेरे ऊपर दुरूद भेजते हैं। ये हाशिया इब्राहिम में दर्जा सारा कुछ इब्राहिम यानी मुझ पर, मुझ आदत पर, मिर्जा कादियानी पर सलाम। इस खाक साहब पर खुदा ताला की तरफ से सलवात और सलाम है, ये भी अपनी तरफ से इन्होंने कहा।
हजरत मसीह पर फजीलत को किस तरह से बयान करते हैं। इस जगह किसी को यह वहम ना गुजरे कि इस तकरीर में अपने नफ्स को हजरत मसीह पर फजीलत दी है, क्योंकि ये एक जुज़वी फजीलत है जो गैर नबी को नबी पर हो सकती है। मुझे कहते हैं कि मसीह मऊद होना का क्यों दावा किया, मगर मैं सच कहता हूं कि इस नबी यानी मिर्जा कादियानी की कामल पैरवी से एक शख्स ईसा से बढ़कर भी हो सकता है। देखें इन्होंने क्या कुछ बयान कर दिया, और ये एक साथ एक ये भी बयान किया, खुदा ने इस उम्मत में से मसीह मऊद भेजा है जो इससे पहले मसीह से अपनी तमाम शान में बढ़कर है। मुझे कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है कि अगर मसीह इब्ने मरियम मेरे जमाने में होता तो वो काम जो मैं कर सकता हूं वो हरगिज ना कर सकता, और वो निशान जो मुझसे जाहिर हो रहे हैं हरगिज ना दिखला सकता। वाह मिर्जा कादियानी साहब, आपकी ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त थी। जो काम आपने किए वो तो हजरत मसीह कर ही नहीं सकते थे। वो किसी के बारे में ये नहीं कहते थे कि ये मेरे निकाह में आ जाएगी, किसी के बारे में ये नहीं कहते थे कि मैं फलां फरिश्ता हूं, मैं फलां हूं, मैं धमका हूं, पता नहीं क्या क्या कुछ है। वो तो ये कभी नहीं कहते थे, और आप इस मामले में सच्चे थे कि जो शान उनकी थी वो आपकी शान हो ही नहीं सकती। आपकी शान जो थी वो तो पता नहीं क्या से क्या थी। उनके लिए कोई मोहम्मदी बेगम भी दस्तयाब नहीं थी जो आपके लिए थी, उनके लिए कोई और भी जो खवातीन थी वो दस्तयाब नहीं थी, लेकिन आपके लिए थी। और ये हमने नहीं मालूम। इसके बाद इन्होंने एक जगह फरमाते हैं कि पहला मसीह आया और उसे दुश्मनों ने दुख दिया और सलीब पर लटकाया, मगर ये दूसरा मसीह इसलिए नहीं आया कि सलीब पर लटकाया जाए, बल्कि इसलिए आया है ताकि सलीब को तोड़े और उसे टुकड़े टुकड़े कर दे। कम से कम इतना इन्होंने मान लिया कि मसीह को सलीब दिया गया था, ये तस्लीम कर लिया। आगे इनका दावा जो है वो शैतानी कलीसिया के जो बाद में आई उन्होंने शायद इन्हीं के पैगाम को कर लिया। ये वो जो एक ही जैसा मिलता जुलता है ताकि आया को सलीब को टुकड़े टुकड़े कर दे, यानी मैं मिर्जा कादियानी। शैतानी मजहब इब्लीस की तारीफ और तौसीफ करते हुए एक शख्स फरमाते हैं, इसके हवाला जात भी हमारे पास मुझे, जंगल उसका मकाम है और खंडरात उसका ठिकाना। वो कल गलियों में चुपचाप रेंगता और साई की तरह ताकुब करता है। वो सलीबों को तोड़ता, रौंदता और रेजा करता है। हाँ, वो सूलियों को घसीटता और घुला देता है। मिर्जा कादियानी से इंतहाई करीब तरीन पैगाम जो इन्होंने सेक्युलरिज्म यानी शैतानियत सफा 114 पर दर्ज है वो मौजूद है, इन्होंने किया। और आखिरी उम्र में कि संख्या भी इस्तेमाल करने लगे थे, जहर थोड़ा थोड़ा करके जहर लेते थे कि मुझे जहर ना दे दिया जाए। कमाल के नबी थे, मौत से डरते थे और जहर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि मुझे कोई जहर ना दे दे। लेकिन ये देखें कि किस किस्म के वो एक बार को जहर की मिकदार शायद ज्यादा ले ली तो क्या हुआ, इस हाल और कह कि तकलीफ में मुब्तला होकर मिर्जा साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। दावे नबूवत भी धरे का धरा रह गया, मोहम्मदी बेगम से निकाह की हसरत भी वहीं की वहीं रह गई, और दावे मोहम्मदी भी अपनी जगह खत्म हो गया। और वो नबी जिनकी शान सारी की सारी शान आपके अंदर थी, वो सारे नबी भी आपके अंदर ही दम तोड़ गए और आप आखिरकार रिश्के खाक हो गए। ऐसे लोग पैदा होते हैं, पैदा होते रहे हैं, इनकी तालीमात से होशियार रहिए। हमें उनसे होशियार रहने की क्यों जरूरत है, ये भी सोचिएगा। दूसरी ये बात कि जो कुछ हम बयान करते हैं उनके पूरे हवाला जात हमारे पास मौजूद होते हैं। अगर आपको मुकम्मल मालूमात इनके बारे में चाहिए कि आप इनसे बात कर सकें या कोई आपसे कादियानी बात करते तो आप उसका जवाब दे सकें, तो हमें नीचे दिए हुए नंबरों पे कॉल कीजिए या हमसे रब्ता कायम करें। हम आपको मुकम्मल तफसीलात इसके बारे में फराहम करेंगे। यकीनन खुदावंद आपको इस वक्त से बरकत देगा। इनके बारे में जानिए, इनके बारे में जानना क्यों जरूरी है मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचिए। प्रोफेसर आरिफ परवेज नकीब, पाकिस्तान गॉस्पेल नेटवर्क, स्टूडियो, कराची।